ओके सो गुड मॉर्निंग बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मर्जर अमालगमेशन एज पर कंपटीशन एक्ट 2002। हम लोग इम्पैक्ट ऑफ मर्जर अमालगमेशन चेक कर रहे थे, इम्पैक्ट ऑफ मर्जर अमालगमेशन डिस्कस कर रहे थे एज पर ये कंपटीशन एक्ट 2002। तो जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था बच्चों, दैट वाज एग्जम्पशन, है ना, एग्जम्पशन टू सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 2, exemption from filing of notice, exemption from combination. Now moving further, एक चीज ध्यान रखना ये जो चैप्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम योर हैंड रिटन नोट्स, यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन, you are requested to make a separate notebook for your CR and you are required to note down all these topics, ठीक है, being discussed in the classes. सर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आप मॉड्यूल रेफर नहीं करोगे क्या? बेटा मैं मॉड्यूल रेफर करूंगा, ठीक है। अब समझो कि जो भी चैप्टर्स मैं हैंड रिटन नोट से तुमको पढ़ा रहा हूं, मॉड्यूल का पूरा क्रक्स है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मॉड्यूल हैज बीन कवर्ड इन दीज हैंड रिटन नोट्स। जो भी मैं क्लासेस में रेफर कर रहा हूं, मॉड्यूल पढ़ के जो क्रक्स तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो वो आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स में इनकॉर्पोरेटेड है। So you can 100% rely on your handwritten notes for the topics that we are discussing, for the units or for the topics that we are discussing in the class from the handwritten notes. Is it clear? However, I will be referring your module also. Okay, I will be referring your module also. I will be ensuring that each and every part of your module is being thoroughly covered. ठीक है, चाहे वो पार्ट ए हो गया और चाहे वो पार्ट बी हो गया। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। नेक्स्ट आ जाओगे कंपटीशन टेस्ट। कंपटीशन टेस्ट अब देखोगे यहाँ पे कंपटीशन टेस्ट, यहां पे अपन पढ़ने वाले हैं those factors on the basis of which Competition Commission of India can determine that whether a proposed agreement, Competition Commission of India can determine that whether a proposed agreement have any appreciable adverse effect on the level of competition in the relevant market of India or not. Before forming such opinion, Competition Commission of India shall be considering, before forming such opinion, Competition Commission of India shall be considering the following factors. ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पे द कमीशन, कमीशन का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? CCI. The commission shall have due regard to all or any of the following factors listed under section 20 subsection 4 for the purpose of determining that whether a combination causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on the competition in the relevant market or not. तो factors में सबसे पहले whether due to such agreement there is any actual, whether it will affect the actual and potential level of competition through importation in the market, whether such agreement will create, up to what extent such agreement is going to create barriers to entry into the market. तो हम इसको और स्पेसिफाई कर सकते थे, barriers to entry of any new player into the market. क्या वो कॉम्बिनेशन की वजह से या अरेंजमेंट की वजह से किसी नए प्लेयर को मार्केट में एंटर करने के लिए डिफिकल्टी अराइज होगा? Whether it will become difficult for any new player to enter into the market because of such arrangement or because of such combination. ठीक है, नेक्स्ट है possibility of a failing business. Possibility of a failing business, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, क्या एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? whether it may lead to the failure of the existing players in the market, whether it will lead to the failure of existing businesses in the market or existing players in the market. Then whether it will affect the nature and extent of innovation. अब तुम समझो, अगर किसी मार्केट में if in any market level of competition is very high, तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है,
वो मार्केट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होने वाला है, इनोवेशन ज़्यादा होने वाला है, and as a result of more and more research and development, or as a result of which as a result of more and more innovation, ultimately consumers are going to be benefited. बट अगर किसी मार्केट में मोनोपोली है, अगर किसी मार्केट में मोनोपोली है या किसी मार्केट में एक फर्म ने डोमिनेंट पोजीशन एक्वायर कर लिया है, तो इन दैट केस इट विल अफेक्ट द लेवल ऑफ इनोवेशन, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द लेवल ऑफ इनोवेशन. बात समझ में आ रहा है क्या? इट इज गोइंग टू अफेक्ट द लेवल ऑफ इनोवेशन. तो यहाँ पे चेक करेगा सीसीआई that whether the proposed combination will affect the nature and level of innovation in the market. Then ये level of combination है, इसको कर लेना level of competition, whether it will affect the level of competition in the market. या हाँ चलो ठीक है, इसको एक इस रेफरेंस में पढ़ सकते हो, सही लिखा है यहाँ पे. लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब है कि वो प्रपोज अरेंजमेंट की वजह से या प्रपोज मर्जर या अमलगमेशन की वजह से हाउ मच मार्केट शेयर दे आर गोइंग टू अक्वायर. If they are going to acquire majority of the market share or substantial market share, ठीक है, then there is a possibility that they may form a dominant position, that they may acquire dominant position, and once if they acquire dominant position, there is also a possibility that they may abuse the dominant position. Then whether it will affect the nature and extent of vertical integration in the market, vertical integration or vertical arrangements in the market, क्या वो अरेंजमेंट की वजह से मार्केट में जो डिपेंडेंसी है एक फर्म का दूसरे फर्म पे, आइदर फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और फॉर द सप्लाई ऑफ फिनिश गुड्स, वेदर दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, तो वो भी एनालाइज होगा. तो ये कुछ फैक्टर्स है जो सीसीआई कंसिडर करेगा. ये कुछ फैक्टर्स हैं विच विल बी कंसिडर्ड बाय द सीसीआई in order to find out that whether the proposed agreement or whether the proposed arrangement is going to have appreciable adverse effect on the level of competition in the relevant market of India or not. And if the conclusion is yes, तो CCI क्या करेगा? CCI will prohibit such arrangement. ठीक है. फिर यहाँ पे तुमको kinds of combination दिया हुआ है. सबसे पहले horizontal combination. horizontal कैसा लाइन बनता है बच्चों? ठीक है, प्लेन लाइन बनता है horizontal. तो हॉरिजॉन्टल अगर अरेंजमेंट हो रहा है, समझो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? टू और मोर कंपनीज इन दी सेम इंडस्ट्रीज, टू और मोर कंपनीज इन दी सेम इंडस्ट्रीज आर गेटिंग मर्ज और अमलगमेटेड. ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन होता है स्पेशली बिटवीन दी कॉम्पिटिटर्स, टू कॉम्पिटिटर्स गेटिंग मर्ज विद ईच अदर, आइदर टू फॉर्म द डोमिनेंट पोजीशन और टू इरेडिकेट द लेवल ऑफ competition present in the market. वर्टिकल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? दो कंपनीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहा है या अमलगमेट हो रहा है, एंड बोथ द कंपनीज वर डीलिंग इन दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स टू ईच अदर. ठीक है, एक कंपनी मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने MRF एंड मारुति सुजुकी, तो MRF और मारुति सुजुकी दोनों कंपनीज एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बनाते. ठीक है, अगर ऐसे कंपनीज के बीच में मर्जर हो रहा है या अमलगमेशन हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? वर्टिकल कॉम्बिनेशन. लिखा है, इट मींस एनी अरेंजमेंट वेयर वन ऑफ देम इज एन एक्चुअल और पोटेंशियल सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द अदर. दे इन्वॉल्व द एंटरप्राइज ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन चेन्स. चेयर्स नहीं करना है, ये चेन से बेटा. ठीक है. देन कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन. कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन का मतलब है मर्जर और अमलगमेशन बिटवीन two or more entities, या any kind of arrangement between two or more entities which are involved in entirely different business segment, which are involved in entirely business segment, or which are involved in totally unrelated business segment, which are involved in totally unrelated business segment. इसको अपन क्या बोलेंगे? conglomerate combination. It means an arrangement where enterprises are involved in totally unrelated business with an objective to diversify new area by acquiring the business. मेन जो पर्पस रह सकता है कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन का, that purpose could be the diversification of businesses. ठीक है. देन डोमेस्टिक कॉम्बिनेशन. डोमेस्टिक कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? दोनों कंपनीज, both the companies entering into the arrangement will belong to the same country. ठीक है, both the companies entering into the arrangement shall be belonging to the
सेम कंट्री, डोमेस्टिक कॉम्बिनेशन. देन क्रॉस बॉर्डर कॉम्बिनेशन. क्रॉस बॉर्डर कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है, एक कंपनी इंडिया का और एक कंपनी आउटसाइड इंडिया का. ठीक है. It involves joining of two or more enterprises where one of them are operating from other country or where one of more of them are operating from country outside India. क्लियर है बच्चों. टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, तो कितने टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ा है सर ने? सर ने पढ़ा है आपको हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, कॉन्ग्लोमरेट, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एज वेल एज क्रॉस बॉर्डर कॉम्बिनेशन. ठीक है. हाँ जी सर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ रिलेवेंट मार्केट. ये सब तुम लोगों ने पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव के अंदर. ठीक है. आई होप यू ऑल मस्ट बी अवेयर विद द कंसेप्ट ऑफ रिलेवेंट मार्केट, रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट. ठीक है. रिलेवेंट मार्केट किससे बनता था? देखोगे यहाँ पे तुमने पढ़ा था सबसे पहले रेलेवेंट मार्केट क्या. तो सर रेलेवेंट मार्केट is the market for which level of competition is to be determined. है ना. relevant market is the market for which the level of competition is to be determined. and relevant market बनता था दो मार्केट से, अगर तुमको याद हो. फर्स्ट वन वाज relevant geographic market. relevant geographic market क्या था? तो relevant geographic market is a market where goods and services being provided are of homogeneous nature. है ना. goods and services being provided are of homogeneous nature and which can be clearly distinguished from the conditions or price prevailing in the neighboring market. पढ़े थे ना relevant geographic market. और relevant product market, तो relevant product market में, relevant product market का मतलब ऐसा market जिसमें all the products being supplied are substitute to each other. ठीक है. relevant product market. ठीक. कॉपी कर सकते हो. relevant market, sum total of relevant geographic market and relevant product market. ध्यान देना यहाँ पे. वही कंसेप्ट दिया तुमको. relevant market is the mix of relevant geographic market और relevant product market. section 2 R defines relevant market as to means a market which is determined by the commission with reference to the relevant product market or relevant geographic market. हाँ, तो relevant section 2R defines relevant market to means the market which may be determined by the commission with reference to the relevant product market and relevant geographic market or with reference to both the market. तो मैंने बोला ना relevant market is actually the sum total. relevant market is actually the sum total of both relevant geographic market and relevant product market. मान लो कि यार CCI को डिटरमाइन करना है कि यार राजस्थान स्टेट में क्या लेवल ऑफ कंपटीशन है. तो राजस्थान स्टेट का जो मार्केट रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिलेवेंट मार्केट. अब राजस्थान स्टेट में क्या होगा? रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट होगा और रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट होगा. तो रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एज वेल एज रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट में लेवल ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे CCI कैन डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंपटीशन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. ठीक है बच्चों. देखोगे relevant geographic market defines section 2 clause 5 defines relevant geographic market. क्या बोला था सर ने? It means a market comprising the area. It consists of area in which conditions of competition for supply of goods or provisions of services or demands of goods or services are distinctly homogeneous. ठीक है. They are, although they are not absolute substitute, goods or services being provided, although they are not absolute substitute of each other,
but they are relatively same or they are relatively homogeneous, and they can be distinguished, and it can be distinguished from the conditions prevailing in the neighboring market. ठीक है, नेक्स्ट तुमको रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट. तो रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट मतलब such market in which the terms of services, rendering of services or selling of goods, provisions, selling of goods are interchangeable. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट्स सेल किए जा रहे, जो गुड्स सेल किए जा रहे, दे आर एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. दे आर एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. तुम लोगों ने देखा हो ना, किसी सिटी में, हर एक सिटी में एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे ना एक ही टाइप का प्रोडक्ट बिक रहा है. ठीक है, मान लो कि ज्वेलरीज है, ज्वेलरीज का मार्केट है तो सिर्फ ज्वेलरीज ही मिल रहा है. ठीक है, गारमेंट्स का मार्केट है तो सिर्फ गारमेंट्स मिल रहे हैं. शूज का मार्केट है तो सिर्फ शूज मिल रहे हैं. तो ऐसे मार्केट को तुम कैटेगराइज कर सकते हो एज रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, बिकॉज ऑल द गुड्स being supplied or being sold in that market are absolute substitute of each other. They are actually absolute substitute of each other. Is it clear? देखोगे section 2 clause T defines the relevant product market to means a market comprising of all those products or services which are regarded as interchangeable or substitutable by the consumers, either by the reasons of the characteristics of the product or services, their prices and intended use. क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर. तो इसके साथ तुम्हारा मर्जर अमालगमेशन एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट हो जाता है खत्म. ठीक है, मर्जर अमालगमेशन एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट आपका खत्म हो जाता है. अब एक बार क्या करेंगे, बिफोर मूविंग फर्दर हम लोग एक बार रेफरेंस ले लेते हैं फ्रॉम आवर ICSI मॉड्यूल in order to ensure that no portion from the ICSI module has been left out or has been skipped. चलो देखना यहाँ पे, देखोगे यहाँ पे ICSI मॉड्यूल में this topic is given in your chapter number 9. ठीक है, तो पहले हम लोग ना इंडेक्स चेक कर लेते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर का. लेट्स वेट. यस, ध्यान देना यहाँ पे. The objective of this lesson is to enable the students to understand competition aspect of combination. ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया competition aspect of combination. हाँ सर. Then kinds of combinations डिस्कस किया. हाँ सर. Combination threshold when combination will be formed. ठीक है, ये डिस्कस किया. Regulation of combination डिस्कस किया. Exemptions डिस्कस किया. Relevant market का concept डिस्कस किया. Then factors to be considered while determining that whether it has appreciable adverse effect on the level of competition in the relevant market of India or not. Then notice देने का process हम लोगों ने डिस्कस किया. ठीक है, रोल ऑफ CCI डिस्कस किया, पावर ऑफ CCI डिस्कस किया, टू मेक एन इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन बाय द कमीशन, देन ऑर्डर ऑफ कमीशन. ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है. हाँ जी सर. अब देखोगे तुम लोग ना जब मॉड्यूल से इसको रेफर करते हो तो मॉड्यूल से तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो. तो बच्चों देखोगे यहाँ पे पहले तो आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है CCI के बारे में. तो एज वी नो एक बार डिस्कस कर लेता हूँ मैं. ये सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. द कमीशन CCI is a statutory body established under the act with the legislative mandate inter alia. क्या objective? To prevent practices having adverse effect on the competition, as well as to promote and sustain competition in the market, as well as to protect the interest of consumers, and to ensure freedom of trade carried on by other participants in the market in India. To perform these above mentioned functions under the scheme of the act, the commission is vested with inquisitional, investigative, regulatory, adjudicatory and advisory jurisdiction. As such, the purpose of filing information before commission is only to set the ball rolling as per the provisions of the act. ठीक है, यहाँ पे बोला गया in order to carry out the above mentioned objectives,
CCI हैज़ बिन गिवन विद द पावर्स, क्या क्या पावर्स है, तो CCI इंक्वायरी कर सकता है, यहाँ पे इंक्वायरी लिख लेना, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, रेगुलेटरी एक्शन ले सकता है, एडजुडिकेशन कर सकता है, एज वेल एज CCI कैन ऑल्सो इशू एडवाइजरी और suggestions to the entities or to the parties proposing to enter into combination, ठीक है। देन उसके बाद है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो ये मैंने तुमको बता दिया कि CCI का अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन रहेगा बच्चों, NCLAT, पहले कौन हुआ करता था, कैट क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट डिस्कस किया, काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट, डोमेस्टिक, क्रॉस बॉर्डर, देन कॉम्बिनेशन रेगुलेशंस। अब ये सब नहीं पढ़ने का, ठीक है, ठीक, ये सब भी नहीं पढ़ने का, सीधे तुम लोग आ जाओगे, सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सीधे तुम आओगे थ्रेशोल्ड लिमिट, रेफर दिस टेबल, ठीक है, ये टेबल अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। यहाँ पे जो है ना ये आउटडेटेड है बेटा, ये आउटडेटेड है, इनिशियली कितना लिमिट था वो हमारे अभी किसी काम का नहीं है, ठीक है, इनिशियली जो लिमिट्स थे वो किसी काम के नहीं है, अभी जो अमेंडेड, ये अमेंडेड वाला पार्ट है, तो तुम लोग इसको रेफर करोगे, ठीक है। ये चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ सो एज टू रिमूव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन व्हाइल रीडिंग दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक। देन एग्जाम्पशंस मैंने डिस्कस किया, 350 करोड़ का एसेट्स, 1000 करोड़ का टर्नओवर अगर है तो नोटिस नहीं देना पड़ेगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, हाँ जी सर। नाउ दिस वन इज विल बी इंपॉर्टेंट, व्हेन अ पोर्शन ऑफ बिजनेस इज ओनली एक्वायर्ड, ये मैंने डिस्कस नहीं किया था तो इसको अपन लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन ओनली अ पोर्शन ऑफ डिस्कस व्हेन ओनली अ पोर्शन ऑफ बिजनेस हैज बीन acquired rather than the entire business, तो समझो इसमें क्या बोला, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मान लो कि यार एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, अब ये ए लिमिटेड के 4 बिजनेस यूनिट्स, ए लिमिटेड के 4 बिजनेस यूनिट ए, बी, सी एंड डी, ठीक है, और एक और कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है। अब ये केस में क्या हो रहा है, बी लिमिटेड इज एक्चुअली acquiring this business unit, ठीक है, बी लिमिटेड इज acquiring this business unit, डी business unit, ठीक है, बी लिमिटेड इज acquiring डी business unit। तो इन सच केसेस, ध्यान देना, इन सच केसेस बिजनेस वैल्यूएशन of only such business unit, business valuation of only such business unit shall be taken into consideration, ठीक है, business value of only such business unit shall be taken into consideration which is being acquired। बात समझ में आ रहा है क्या, बिजनेस वैल्यूएशन ऑफ ओनली सच बिजनेस यूनिट शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हिच इज बीइंग एक्वायर्ड। मान लो कि यार ए लिमिटेड का जो टोटल बिजनेस वैल्यूएशन है वो है 5000 करोड़ का, ठीक है, एंड आउट ऑफ विच डी बिजनेस यूनिट का वैल्यूएशन था 700 करोड़ का, तो बी लिमिटेड इज ओनली एक्वायर डी बिजनेस यूनिट, है ना, बी लिमिटेड इज ओनली एक्वायर डी बिजनेस यूनिट इन दिस केस। हाँ सर, तो यहाँ पे तुम 5000 करोड़ पे वैल्यूएशन नहीं करोगे, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग दैट वेदर कॉम्बिनेशन इज बीइंग फॉर्म्ड और नॉट, तुम 5000 करोड़ का वैल्यू नहीं लोगे, पूरे ए लिमिटेड को एक्वायर नहीं किया जा रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द लिमिट आप सिर्फ वो बिजनेस यूनिट का वैल्यूएशन लेने वाले हो विच इज सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन। you are going to consider the valuation of only such business unit which is subjected to the acquisition। is it clear, हाँ सर। then regulation of combination section 6 हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है,
एक्सेप्शन इसका डिस्कस किया है, सेम वही चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बच्चों। एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ऑफ नोटिस मैंने डिस्कस किया कि कौन कौन से केसेस में नोटिस नहीं देना पड़ेगा सीसीआई को। सेक्शन 6(2) का एग्जम्पशन ये सब डिस्कस किया था ना। अमलगमेशन बिटवीन रीजनल रूरल बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स और कंपनीज और एंटिटीज इन्वॉल्व इन ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, ऑर्डिनरली एग्जाम ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था फाइनेंशियल अरेंजमेंट, अगर किसी कंपनी का एक्विजिशन कर रहा है कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन परसुएंस टू एनी लोन एग्रीमेंट, अगर याद हो। नेक्स्ट, नोटिस ऑफ टू द कमीशन डिस्क्लोजिंग डिटेल्स, ये सब हो गया है। इंक्वायरी वाला पार्ट हो गया है। कंपटीशन टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हावेवर यहाँ पे ज़्यादा फैक्टर्स तुमको गिवन है, मैंने आपको नोटबुक के अंदर 7 to 8 फैक्टर्स ही मेंशन किया है। एग्जाम के लिए आप 7 to 8 फैक्टर्स याद करके जाओगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। कंसेप्ट ऑफ रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट जोग्राफिक मार्केट, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट मैंने डिस्कस किया आपके साथ। देन फाइलिंग ऑफ नोटिस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, टाइम डिस्कस किया, फाइनल ऑर्डर, फाइलिंग प्रोसेस, समरी ऑफ कॉम्बिनेशन, कंसल्टेशन विद द कमीशन। यहाँ पे एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑर्डर्स ऑफ कमीशन, डीम्ड अप्रूवल। डीम्ड अप्रूवल कब? अगर 210 डेज के अंदर 210 डेज के अंदर अप्रूवल नहीं आता है। अपन लोगों ने पढ़ा था ना कि जब आपने नोटिस फाइल किया सीसीआई को फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग द अप्रूवल ऑफ सीसीआई, तो वहाँ पे वी नीड टू वेट फॉर 210 डेज, जिसको अपन कंपल्सरी वेट पीरियड भी बोल रहे थे, याद आ रहा है। एंड 210 डेज के अंदर अगर सीसीआई की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ऐसा मान लिया जाएगा दैट सीसीआई हैज़ गिवन द अप्रूवल, देन द प्रोविजंस ऑफ डीम्ड अप्रूवल शैल बिकम एप्लीकेबल। ये डिस्कस किया था अपन ने। Then we had also discussed section number 32 that defines the extraterritorial jurisdiction of the commission और CCI। Then हम लोगों ने पेनल्टी भी डिस्कस किया था सेक्शन 43A का, इन केस अगर आपने नोटिस नहीं फाइल किया CCI को तो पेनल्टी कितना था? 1% ऑफ टोटल एसेट्स और टर्नओवर व्हिचएवर इज हायर। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंथ्रिया। ठीक है, जब आपको पेनलाइज किया जाता है ना सेक्शन नंबर 43A में फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ नोटिस, वहां पे वेदर इट वाज इंटेंशनली डन और इट वाज आउट ऑफ मिस्टेक नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। भला अगर तुमने नोटिस नहीं भेजा तो इवन दो तुमने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, इवन दो अगर तुमने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, देन ऑल्सो पेनल्टीज विल बी लेविड ऑन यू, देन ऑल्सो पेनल्टीज विल बी लेविड ऑन यू। इज इट क्लियर? देन पेनल्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों। तो आई वुड सीरियसली सजेस्ट एवरी स्टूडेंट, दो चीज़ें मैंने मार्क किया है वो आप नोट डाउन कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन रेफर योर हैंड रिटन नोट्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो दिस वन इज योर दिस इज योर चैप्टर नंबर 9, ठीक है, फ्रॉम योर ICSI मॉड्यूल। क्लियर है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंप्लीटेड। अगर तुम चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, और अगर रीड नहीं भी करोगे ना, अगर हैंड रिटन नोट्स ही रेफर करते हो तो दैट कैन ऑल्सो सर्व योर पर्पज, दैट विल ऑल्सो सर्व योर पर्पज। ठीक है, हाँ जी सर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज अब नेक्स्ट एस्पेक्ट है बच्चों मर्जर अमालगमेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट। मर्जर अमालगमेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट, ध्यान देना यहाँ पे। तो ये चैप्टर ना, ये टॉपिक तुमको दिया हुआ है चैप्टर नंबर 8 में। इट इज बीइंग कवर्ड, दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज बीइंग कवर्ड इन चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर ICSI मॉड्यूल। ठीक है, पहले मैं कुछ की कंसिडरेशंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो सर हम लोग पढ़ने वाले हैं मर्जर अमालगमेशन, स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट एस्पेक्ट। स्टैम्प ड्यूटी एक्ट कौन से ईयर का?
1899, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट 1899 से रिलेटेड एस्पेक्ट। मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर लगता है बच्चों? स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर लगता है? तो सर स्टैम्प ड्यूटी इज बीइंग लेविड ऑन इंस्ट्रूमेंट, है ना? पढ़ के आए एग्जीक्यूटिव में? जी सर, स्टैम्प ड्यूटी इज लेविड ऑन इंस्ट्रूमेंट। एंड बच्चों मुझे बताओ इंस्ट्रूमेंट क्या होता था? तो सर इंस्ट्रूमेंट होता था एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स और purports to create, which create or purports to create, then alter, record, extinguish, कुछ याद आ रहा है? और relinquish any rights or liabilities, any rights or liabilities from one person to another person। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्रिएट कर रहा है, प्रपोर्ट कर रहा है और जो क्रिएट कर रहा है और क्रिएट करेगा, ऑल्टर कर रहा है, ऑल्टर करेगा, रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड करेगा, एक्सटिंग्विश और रिलिंक्विश एनी काइंड ऑफ राइट्स और लाइबिलिटीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, बिकॉज ऑफ विच या थ्रू विच एनी काइंड ऑफ राइट्स और लाइबिलिटीज इज बीइंग क्रिएटेड, इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ऑल्टर्ड, रिलिंक्विश्ड और extinguished from one person to another person, all such documents will be considered as an instrument, and instrument है तो that will be chargeable to stamp duty, that will be chargeable to stamp duty। तो एक बात सोच के बताओ, मर्जर और अमालगमेशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ मर्जर अमालगमेशन, हम लोगों ने पढ़ा था ना सेक्शन नंबर 232, सेक्शन नंबर 230, सेक्शन नंबर 230, सेक्शन 232 में तुम लोगों ने पढ़ा था कि इन दी ओपिनियन ऑफ एनसीएलटी, अगर एनसीएलटी को लगता है कि सारी चीज़ें बराबर है तो एनसीएलटी ऑर्डर पास कर सकता था, एनसीएलटी ऑर्डर पास करता था ना, फॉर मर्जर और अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज प्लस ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी कंपनी। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल ऐसा होता था। तो ये जो ऑर्डर है passed by the NCLT, this order passed by the NCLT for transferring the assets and liabilities from transferor company to the transferee company, whether this copy of order can be considered as an instrument, whether this copy of order can be considered as an instrument, because order एक document होगा और वो document के थ्रू क्या हो रहा है बच्चों, एसेट्स या लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो रहा है। वो डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या हो रहा है बच्चों, एसेट्स या लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो रहा है, किससे? ट्रांसफरर से। किसको? ट्रांसफरी को। ठीक है, एसेट्स या लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो रहा है किससे? ट्रांसफरर से। किसको? ट्रांसफरी को। तो वेदर सच कॉपी ऑफ ऑर्डर कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट, आंसर विल बी यस। तो वेदर इट विल बी चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी, आंसर विल बी यस। इज इट क्लियर? तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे? कॉपी ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय द एनसीएलटी which involves transfer of assets from transferor company to the transferee company can be considered as an instrument, and if it is being considered as an instrument it will be chargeable to stamp duty। ये पहला एस्पेक्ट है। अब ऐसे ही तुम लोगों ने सेक्शन नंबर 237 भी पढ़ा था, सेक्शन नंबर 237 पढ़ा था। क्या था सेक्शन 237? तो सर सेक्शन 237 में था मर्जर और अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट।
merger or amalgamation of two or more companies by the order of central government in the public interest. पढ़े थे ऐसा कुछ? हाँ जी सर. तो क्वेश्चन अराइज हुआ सेक्शन 237 में जो ऑर्डर पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या उसको भी इंस्ट्रूमेंट माने? क्या उसको भी इंस्ट्रूमेंट माने? तो एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी एक्ट पढ़ा है ना, तो स्टैम्प ड्यूटी एक्ट में ना इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है आइदर बाय द गवर्नमेंट और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, क्या बोला मैंने? एनी डॉक्यूमेंट और एनी इंस्ट्रूमेंट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, such instruments are not chargeable to stamp duty. क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी का जो कलेक्शन है, जो रेवेन्यू, वो अल्टीमेटली किसके पास जाने वाला है? अल्टीमेटली किसके पास जाने वाला है? तो अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट के पास ही जाने वाला है. ये तो वाली बात हो गई ना, नीचे की पॉकेट से पैसा निकाल करके तुमने ऊपर की पॉकेट में रख लिया. बात समझ में आ रही है क्या? तो दूसरा देखो कंसिडरेशन जो तुमको यहाँ पे समझना है, दैट इज if an order is passed by, if an order for merger or amalgamation is passed by the central government by virtue of the powers given to the central government under section number 237 of the Companies Act 2013, such copy of order shall not be considered as an instrument, and if it is not being considered as an instrument, तो stamp duty in such cases shall not be payable. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो ये था दूसरा एस्पेक्ट. अब इसमें एक थर्ड एस्पेक्ट और है. थर्ड एस्पेक्ट बोलता है यस, देखो थर्ड एस्पेक्ट क्या डिफाइन करता है? थर्ड एस्पेक्ट डिफाइन करता है मर्जर और अमालगमेशन बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. ठीक है, यहां बोला गया कि अगर कोई सब्सिडरी कंपनी जाकर के मर्ज हो रहा है किसमें? होल्डिंग में. इफ एनी सब्सिडरी कंपनी इज गेटिंग मर्ज इन दी होल्डिंग कंपनी, ठीक, देन it can be exempted from the payment, it can be exempted from the payment of stamp duty, it can be exempted from the payment of stamp duty. कब? कब? तो सर when at least 90% of the shares of holding company, oh sorry, 90% of the shares of subsidiary companies already held by holding. तो होल्डिंग सब्सिडरीज के बीच में अगर मर्जर अमालगमेशन हो रहा है तो दैट कैन बी exempted from the payment of stamp duty provided holding company is already having 90% stake, holding company is already having 90% stake in the subsidiary company. Is it clear? तो ध्यान दोगे यहाँ पे. देखो ये कंसेप्ट अपन ने स्टार्ट किया विद अ क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे? whether stamp duty is payable on the instrument which is executed at the time of merger or amalgamation. मैं एक बार स्लाइड चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए so that it can be visible. yes, whether stamp duty is payable on the instrument executed at the time of merger or amalgamation. देखो क्या लिखा है. In the landmark judgment of Bombay High Court in the case of Taka Pharmaceuticals versus State of Maharashtra, it has serious implications for the merger or amalgamation, not just by Bombay Stamp Act but also mergers which were being covered by Stamp Act of other states. तुम लोगों ने अगर पढ़ा हो एग्जीक्यूटिव पे दैट स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, ठीक है, लेवी एंड चार्जिंग ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट मैटर. स्टेट के पास पावर है टू लेवी एंड चार्ज स्टैम्प ड्यूटी, है ना. बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी एक्ट इंट्रोड्यूस भी क्यों किया गया था? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. दस rate of stamp duty can also differ, rate of stamp duty can also differ from one state to another.
डिपेंडिंग अपॉन दी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट। तो हर स्टेट का अपना स्टैम्प ड्यूटी एक्ट हो सकता है। सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। ठीक ठीक है, क्या डिसीजन तो देखना यहाँ पे। द मेजर कंक्लूजन्स वर एज फॉलो। एन अमालगमेशन ऑर्डर बाय द कोर्ट, पहले कोर्ट हुआ करता था बेटा, जब ये जजमेंट आया था तो कंपनीज एक्ट 1956 वाज प्रिवेलिंग, एंड कंपनीज एक्ट 1956 में हाई कोर्ट के पास पावर था रादर देन एनसीएलटी। अब एनसीएलटी हो गया, तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, एन अमालगमेशन ऑर्डर पास्ड बाय द एनसीएलटी अंडर सेक्शन 232, पहले सेक्शन 394 हुआ करता था, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सच ऑर्डर इज एन इंस्ट्रूमेंट under the Bombay Stamp Act, and state are well within their jurisdiction to levy stamp duty on the instrument of amalgamation। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि जो मर्जर अमालगमेशन के लिए ऑर्डर पास कर रहा है हाई कोर्ट, ऑर्डर्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम ट्रांसफरर कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी will be considered as an instrument, and if on such instruments any state is charging stamp duty, then they are well within their powers to charge stamp duty on such copy of order. They are well within their powers to charge stamp duty. They are well within their powers to charge stamp duty on such copy of order। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैम्प ड्यूटी विल बी लेविड ऑन द ग्रॉस एसेट्स। अच्छा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि यार कितने वैल्यू पे स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। तो भाई जो ग्रॉस एसेट्स ट्रांसफर हो रहा है ना, सॉरी, जो वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रहा है, फ्रॉम द ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी, वो वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग पे स्टैम्प ड्यूटी विल बी पेबल। अब तुम समझो, मैं बताता हूँ एक बार क्या लिखा है यहाँ पे। स्टैम्प ड्यूटी वुड बी लेविड नॉट ऑन द ग्रॉस एसेट्स ट्रांसफर्ड बट ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग व्हेन द ट्रांसफर इज ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। देखो यहाँ पे क्या बोला, मान लो कि यार दो कंपनीज हैं, ए लिमिटेड एंड बी। ए लिमिटेड ना जाकर के अमलगमेट हो रहा है, रिजल्टेंट कंपनी क्या बनेगा, बी लिमिटेड। अब ए लिमिटेड के टोटल एसेट्स का वैल्यूएशन आ रहा है 500 करोड़, ठीक है, बट इन एसेट्स को परचेज कर रहा है बी लिमिटेड एट 450 करोड़। तो ऑल्दो नेट एसेट वैल्यू इज ऑफ 500 करोड़, यहां पे इररिलेवेंट है, नेट एसेट वैल्यू यहां पे इररिलेवेंट है। तुमको स्टैम्प ड्यूटी कितने पे करना है, तो तुमको स्टैम्प ड्यूटी पे करना है ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग, कितने वैल्यू पे वो एक्वायर किया गया है उस पे स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ मर्जर और अमलगमेशन। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान देना यहाँ पे। नेक्स्ट, amalgamation between holding and subsidiary. The CG has exempted the payment of stamp duty on any instrument which covers the transfer of property between the company limited by shares, and in cases where at least 90% of the issued capital of the transferor company is in the beneficial ownership of the transferee company। बोला स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना रहेगा कब, जब ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हो रहा है सब्सिडरी कंपनी से होल्डिंग कंपनी को, and if holding company is already having 90% stake, if the holding company is already having 90% stake in the subsidiary companies। तो अगर होल्डिंग कंपनी के पास ऑलरेडी 90% स्टेक है सब्सिडरी कंपनी का, एंड इन सच केसेस अगर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हो रहा है सब्सिडरी से होल्डिंग पे, दैट वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू द पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। तो ये है पहला एग्जाम्पशन। दूसरा एग्जाम्पशन देखोगे यहाँ पे, when the transfer takes place between two subsidiaries companies of which not less than 90% of the share capital is in the beneficial of the same parent company। तो इसको मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। होल्डिंग सब्सिडरी में ना दो एस्पेक्ट कवर होंगे, होल्डिंग सब्सिडरी, मर्जर अमलगमेशन ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, ध्यान देना यहाँ पे, और इसको तुम नोट डाउन भी कर लेना, जो नोट्स तो मेंटेन कर रहे हो ना हैंड रिटन नोट्स, उसमें भी ये चीज लिख लेना।
तो बेटा पहला केस वन, फर्स्ट वन है केस वन। केस वन में तुमको क्या बोला, मान लो यार ए लिमिटेड और ए लिमिटेड का सब्सिडरी बी लिमिटेड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए लिमिटेड इन दिस केस इज अ होल्डिंग कंपनी and B Limited in this case is a subsidiary company। ठीक है, अब B Limited का ऑलरेडी 92% स्टेक एक के पास है, ऑलरेडी 92% स्टेक है किसके पास, एक के पास, एंड B Limited is transferring the leftover assets। B Limited is transferring the leftover assets। So in case if B Limited is transferring the leftover assets, in case if the B Limited is transferring the leftover assets, for transferring these leftover assets इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया गया होगा ना फॉर ट्रांसफरिंग द एसेट्स। हाँ सर, तो ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या नहीं होगा, स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट चार्जेबल। ये ट्रांसफर ऑफ एसेट्स पे क्या नहीं होगा, स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट चार्जेबल। इज इट क्लियर? चलो ये तो था केस वन। अब देखोगे केस टू। मान लो कि यार एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और ए लिमिटेड के दो सब्सिडरीज बी एंड सी। ए लिमिटेड के दो सब्सिडरीज बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में बी लिमिटेड का 91% स्टेक होल्डिंग ए के पास है एंड सी लिमिटेड का 90% स्टेक होल्डिंग सी के ए के पास है, ठीक है। दोनों सब्सिडरीज और दोनों सब्सिडरीज का एटलीस्ट 90% स्टेक किसके पास है, पेरेंट कंपनी के पास। एंड मर्जर एंड अमलगमेशन हो रहा है बिटवीन टू सब्सिडरीज। मान लो कि यहाँ पे दो सब्सिडरीज मर्ज हो रही हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे टू सब्सिडरीज कंपनीज आर गेटिंग मर्ज, टू सब्सिडरीज कंपनीज आर गेटिंग मर्ज्ड, ठीक है। और दोनों सब्सिडरी कंपनीज का 90% स्टेक, ठीक है, 90% स्टेक ऑफ बोथ द सब्सिडरीज कंपनी इज बीइंग हेल्ड, 90% स्टेक ऑफ बोथ द सब्सिडरी कंपनीज इज बीइंग हेल्ड, एक्सक्यूज मी, yes, two subsidiaries are getting merged and 90% stake of both the subsidiaries is being held by the or is being held with the same parent company। तो उन केसेस में भी क्या होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स फ्रॉम वन सब्सिडरी टू दी अनदर सब्सिडरी shall not be considered as an instrument, and if it is not being considered as an instrument it will not be chargeable to the stamp duty। ठीक है बच्चों, सर नाउ ये देखो, ये डिविनिमस एग्जम्पशन करके यहाँ पे लिखा है बच्चे ने, ये इसको कट कर देना, ये इस चैप्टर के रिलेवेंसी में नहीं है, हो सकता है उसने पुराने पिछले चैप्टर्स का जो हैंड रिटन नोट्स है वो यहाँ पे लिखा है। सर ये स्टूडेंट का हैंड रिटन नोट्स है, यहाँ पे मैंने मेंटेन करवाया था और स्टूडेंट्स ने मेंटेन किया है, उसका आपको पीडीएफ कॉपी है। क्लियर है? इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है वो आप और ऐड कर सकते हो क्या सर? तो लिख लेना, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। लिख लेना यहाँ पे, एनी कॉपी ऑफ ऑर्डर, लिख लोगे एनी कॉपी ऑफ ऑर्डर फॉर
मर्जर और अमालगमेशन। passed by central government under section 237 of the act, passed by the central government under section number 217 of the act, shall not be chargeable to stamp duty। इतना ध्यान रखना, shall not be chargeable to stamp duty। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? तो ये था आपका स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट। नाउ हैंड रिटन नोट से हो गया। नाउ वी विल रेफरिंग योर आईसीएसआई मॉड्यूल इन दी नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट को कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ मर्जर अमालगमेशन। मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट विद योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मर्जर अमालगमेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, यहाँ तक आप पढ़ के आइए बिफोर कमिंग इनटू द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।